Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of programming exercises of chapter number 6, that is flow of control of computer science grade 11. And this is part number 2 और इसके previous session में already हमने इसी chapter के first back exercise के first part को already solve कर लिया है. यदि वो वीडियो आपने मिस कर दिया है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडेज सेशन. The question is, write a program that takes the name and age of the user as input and display a message whether the user is eligible to apply for a driving license or not. And the eligibility criteria is age should be at least 18 years. Now यहाँ पर हम if statement का use करेंगे as you all know. चलिए इसके लिए प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम name और age input करेंगे. इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ name, जहां पर मैं सिंपली इनपुट मेथड यूज करूंगा और इसके अंदर मैसेज फ्लैश कर दूंगा एंटर नेम ऑफ यूजर. एंड ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट लाइन आई विल एक्सेप्ट एज. सो उसे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इनपुट जो भी होता है दैट इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग. सो इस तरह से मैंने ये इनपुट कर लिया एंड देन सिंपली आई विल चेक वेदर माई एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 और नॉट. Now, if it is there, definitely मैं यहाँ पे print कर दूंगा eligible. Otherwise, you can say else not eligible. So this is how we can understand how to write program for this particular question. चलिए इस प्रोग्राम को हम Python shell पे execute करके देखते हैं. Now you can see here, this is my program, जहाँ पे मैंने थोड़ा better तरीके से इसको लिखा हुआ है. Enter name of user, then enter age, and here I am saying that जो भी नेम है जो मैंने इनपुट किया है उसके साथ whether he is eligible for license or is not eligible for license. So let's try to run this program. Now here it asking the name of person, so I am taking it to say Sanjay, and then the age. So if I say input 10, now it is saying that Sanjay is not eligible for. So this is how we can write program for this particular problem. Let's move to the next question now. Here it is asking that write a function to print the table of a given number. The number has to be entered by the user. We have to accept a number, say for example 2. So we have to display the table of it, this number like 2, 4, 6, 8 and so on. So obviously here we will use for loop. So let's see how can we write program for this. So obviously I'll take a variable n where I'll accept the number जिसका मुझे table find out करना है. इसके लिए मैं इनपुट स्टेटमेंट लिख लेता हूं. एंड आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट ए लूप जहां पे मैं बोलूंगा आई, जो मेरा एक काउंटर का वर्क करेगा. एंड आई विल से दैट आई इन रेंज, एंड मुझे स्टार्ट करना है लूप 1 से एंड अप टू माई 10. सो इट शुड बी 11 बिकॉज मैं 11 करूंगा तब ये 10 तक चलेगा. एंड आफ्टर दैट सिंपली आई विल प्रिंट एन द नंबर मल्टीप्लाइड बाई माई आई एंड दैट्स इट. So let's move to the Python shell. There we try to run this program and check whether it is working or not. So this is my program. Run करते हैं. Now if I take say for example 15, so now you can see this is the table of 15. So this is how we can write program for this. Let's move to the next question. Here it is saying that write a program that prints minimum and maximum of 5 numbers entered by the user. हमें 5 numbers में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है. तो इसको बनाने का एक बेसिक तरीका ये हो सकता है कि हम 5 डिफरेंट वेरिएबल्स ले लें और इन 5 डिफरेंट वेरिएबल्स में वैल्यू इनपुट करने के बाद इनका हम आपस में कंपैरिजन करें मल्टीपल इफ को यूज करते हुए, एंड देन हम फाइनली लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट कर लें. बट इस प्रोसेस में होगा क्या, आंसर तो हमें मिल जाएगा लेकिन हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी काफी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमें बहुत सारे डिफरेंट कंपैरिजंस करने पड़ेंगे. सो इसके लिए फिर बेस्ट अल्टरनेट वे क्या हो सकता है कि हम एक वेरिएबल ले a, इसी में हम 5 डिफरेंट नंबर्स को इनपुट करें और इस दौरान हम क्या करेंगे, 2 टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे मैक्स और मिन, जिसमें कि जब फर्स्ट टाइम हम a में कोई वैल्यू इनपुट करेंगे उसको हम डायरेक्ट असाइन कर देंगे मैक्स और मिन में.
एंड आफ्टर दैट जो अदर नंबर हम इनपुट करेंगे उन सारे नंबर्स का कंपैरिजन हम मैक्स और मिन के साथ करते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू लाइक ग्रेटर देन और लेस देन, और उसकी बेसिस पे फाइनली हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। सो चलिए अब इसका प्रोग्राम हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ए ले लेता हूं जिसमें मैं सबसे पहले इनपुट करूंगा फर्स्ट नंबर। सो इनपुट में जाके मैंने सीधे पहले तो एक मैसेज फ्लैश कर दिया, एंटर 5 नंबर्स, क्योंकि यूजर को ये समझ में आएगा कि हाँ हमने 5 नंबर इनपुट किया है। अच्छा, इसके बाद में सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैक्स, और मैक्स के साथ में एक और वेरिएबल ले लेता हूँ मिन। इन दोनों में मैं ए की वैल्यू को असाइन कर देता हूँ एंड आफ्टर दिस मैं एक लूप स्टार्ट करूंगा जहां पे बाकी 4 नंबर्स को मैं इनपुट करूंगा और मैक्स और मिन के साथ उन नंबर्स का कंपैरिजन भी करूंगा। सो इस दौरान मैं क्या लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज। अब चूंकि ऑलरेडी एक वैल्यू हो चुका है सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंज 4 क्योंकि क्वेश्चन में 5 नंबर्स की डिमांड है। आफ्टर दिस मैं इनपुट कर दूंगा ए में फिर से, सो आई विल सिंपली राइट इंट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट, और इनपुट के अंदर कोई भी मैसेज हमें देने की जरूरत नहीं है, इस ब्रैकेट को हम छोटा कर लेते हैं लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे इमीडिएटली कंपेयर करूंगा इफ द वैल्यू ऑफ मैक्स इज लेस देन व्हाट माई ए। इमीडिएटली मैं उसे मैक्स में शिफ्ट कर दूंगा एंड इसी तरह से एलिफ लगाऊंगा और मैं ये चेक करूंगा यदि मिनिमम की वैल्यू इज ग्रेटर देन ए, सो ऑब्वियसली मिनिमम में मेरी उस वैल्यू को शिफ्ट कर दो एंड दैट्स इट। इस तरह से क्या होगा, जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो मेरे मैक्स में चले जाएगी और मिनिमम जो है वो हमारे मिन वेरिएबल में आ जाएगी एंड आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम दिस लूप हम मिनिमम और मैक्सिमम को डिस्प्ले कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को हम पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ द ईयर एंटर्ड बाय द यूजर इज ए लीप ईयर और नॉट। नाउ लीप ईयर का प्रोग्राम सबसे ज्यादा कॉमनली लिखा जाने वाला प्रोग्राम है बेसिक लेवल पे, और आई होप आपको भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता ही होगा। बट अगेन मैं अपनी ओर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, लीप ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं। मतलब सपोज मैंने y एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने ईयर इनपुट किया, अगर मैं इसे 4 से मॉड कर दूं और ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, मतलब वो ईयर मेरा क्या होता है, लीप ईयर होता है। बट थोड़ा सा अगर और बेहतर तरीके से हम सोचें तो अकॉर्डिंग टू आवर कैलेंडर जो 21 ईयर होगा, आई मीन 2100 जो ईयर आएगा, दैट इज नॉट अ लीप ईयर। नाउ इस फैक्ट को अगर मैं दिमाग में रखते हुए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो 2100 को भी ये लीप ईयर शो करेगा और मेरा ये प्रोग्राम गलत हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि मैं इस प्रोग्राम के लिए फिर कैसा कोड लिखूं या कंडीशन लिखूं। तो एक तो जैसे मैंने बोला कि y mod 4 डबल इक्वल टू 0 तो हमें करना ही है। दूसरा मैं एक काम करता हूं, यदि मैं इस y mod 100 को लिखूं और इसे मैं बोलूं कि ये इससे 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं इसकी बेसिस पे इस 2100 को चेक करूंगा तो ये लीप ईयर नहीं है दिखाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि दोनों कंडीशन की वजह से अगर मैं 2000 को अगर डिवाइड करूंगा 4 से और 100 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 से तो डिवाइड हो ही जाता है और 100 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में 2000 को भी हमारा प्रोग्राम नॉट ए लीप ईयर शो करेगा। तो अब इसका अल्टरनेट हमारे पास क्या हो सकता है कि मैं 2100 को भी सेटिस्फाई करूं या 2000 को भी सेटिस्फाई करूं। तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन लेंगे, y mod 400 डबल इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस एक और कंडीशन को इसके साथ इन्वॉल्व कर दूं, मतलब mod 4, mod 100 और mod 400, तब फिर ये मेरा लीप ईयर का प्रोग्राम कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। चलिए अब इसे कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेरिएबल y लेता हूं जिसमें मैं ईयर इनपुट कर देता हूं। नाउ आफ्टर दिस मैं इफ स्टेटमेंट लिखूंगा जहां पर मैं सबसे पहले बोलता हूं इफ y mod 4 डबल इक्वल टू 0 एंड y mod 100 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन होती है तो हमारा लीप ईयर होगा, और या फिर एक और कंडीशन हम देंगे y mod 400 डबल इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आप इसे भी ब्रैकेट में रख सकते हैं, सो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए समझना और हमारे सिस्टम के लिए भी ऑब्वियसली कि पहले वो इन दोनों का कंपैरिजन करेगा एंड इसके बाद में इसका कंपैरिजन करेगा। तो दोनों में से जो भी ट्रू होगा फाइनल, उसकी बेसिस पे हम यहाँ पे मैसेज फ्लैश कर देंगे, दिस इज माई लीप ईयर, अदरवाइज नॉट ए लीप ईयर।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ रहा होगा। चलिए इसे भी एक बार पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो दिस इज माई प्रोग्राम, लेट्स ट्राई टू रन दिस। Now it is asking about enter a year. Say for example, if I take you to 2000, so it is showing you 2000 is a leap year. चलिए फिर से रन करते हैं। And this time if I type 1996, then see again it is showing you leap year. And suppose if you type 2100, then see what happens. If I press enter, so it is showing you 2100 is not a leap year. So this is how we can understand the solution of this program. Let's move to the next question now. It is saying that write a program to generate the sequence -5, 10, -15, 20, -25 and so on up to n, where n is an integer input by the user. हमें ये सीरीज डिस्प्ले करनी है up to n, तो इसके लिए हम क्या लॉजिक लगाएं? Now see, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑड नंबर है 5 है, देन वो ऑब्वियसली 5 का मल्टीपल है। वैसे तो 10, 20 भी इसके मल्टीपल्स हैं, बट अगर 5 का मल्टीपल ऑड नंबर है तो हम उसे माइनस के साथ डिस्प्ले करते हैं, और अगर 5 का मल्टीपल एक इवन नंबर है तो हम पॉजिटिवली उसे डिस्प्ले करते हैं अप टू n टाइम्स। तो चलिए इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे n ले लेता हूँ और यहाँ पे मैसेज फ्लैश कर देता हूँ मैक्सिमम लिमिट आपके सीरीज की क्या है। सो मैं इसके लिए लिखता हूँ, सो सबसे पहले मैंने अपने प्रोग्राम के लिए या सीरीज के लिए अपर लिमिट n में डाल दी। इसके बाद में मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिया, मैंने बोला i इन ऑब्वियसली माई रेंज, मैं स्टार्ट करूंगा 1 से, आप 0 से भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट 0 हम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें वो इवन का केस हो जाएगा। नाउ 1 से हम शुरू करेंगे एंड अप टू n, लेकिन n+1 हमें लेना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं n लूंगा तो वो -1 तक ही लूप चलेगा। नाउ आफ्टर दिस मैं सीधे सीधे यहाँ पे इफ लगाता हूँ। मैंने चेक किया इफ a mod 2 डबल इक्वल टू व्हाट माई 0। इसका मतलब ये कि अगर ये मेरा इवन नंबर है लेकिन साथ ही साथ क्या ये मल्टीपल है 5 का, सो आई कैन से a mod 5 डबल इक्वल टू 0। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी इसका मतलब ये 10 होगा। सो आई विल सिंपली डिस्प्ले इट लाइक प्रिंट, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा i को। नाउ इसको मैं थोड़ी देर से कंप्लीट करता हूँ, रीजन बताता हूँ आपको। इसके बाद पहले तो मैं एलिफ लगाता हूँ। इस एलिफ में अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये ऑड नंबर है। तो a mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड माई a इज डिविजिबल बाई 5। सो मैं इस कंडीशन को लिखता हूँ एंड इसके बाद में फिर से मैं प्रिंट करूंगा, बट दिस टाइम मैं -i को प्रिंट करता हूँ। नाउ अगर मैं सीधे इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूं तो वैल्यूज मेरी न्यू लाइन में आते चले जाएंगी, बट मुझे एक ही सीक्वेंस में वैल्यूज को डिस्प्ले करना है। तो मैं प्रिंट के साथ यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट यूज करूंगा एंड का, जहां पर मैं सीधे सीधे एक स्पेस प्रोवाइड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जो भी वैल्यूज हैं लाइक -5, फिर नेक्स्ट जो वैल्यू 10 आएगी वो यहाँ आएगी आगे। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट को यूज कर लिया है एंड इक्वल टू स्पेस, एंड दैट्स इट। अब ये मेरा प्रोग्राम जब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे ये सीरीज डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए इस प्रोग्राम को मैं पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सो यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम। चलिए अब हम इसे रन करते हैं। नाउ इट इज आस्किंग फॉर द अपर लिमिट फॉर द सीरीज। सो से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डालता हूँ 40, देन यू सी it is showing you -5, 10, -15 up to this 40. So this is how we can write program for this particular question. I hope आपको इसका solution समझ में आ रहा होगा. Let's move to the next question now. Now it is saying that write a program to find the sum of 1 plus 1 by 8 plus 1 by 27 up to 1 by n cube. मतलब यहाँ पर हमें इस सीरीज का टोटल सम फाइंड आउट करना है और n हमें इनपुट करना है। सो इसके लिए जब हम कोड करेंगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं n लेता हूँ और इस n में मैं मैक्सिमम लिमिट अपनी डाल देता हूँ कहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए। सो मैं इनपुट कर देता हूँ एंड आफ्टर दिस मैं अपना लूप स्टार्ट करूंगा वेयर आई टेक दिस i ऑब्वियसली इन रेंज, जहां पर कि मैं ले लूंगा n+1 एंड देन मैं एक वेरिएबल यहाँ पे ले लूंगा सम, जिसको मैं 0 असाइन कर देता हूँ ताकि एडिशन में कोई प्रॉब्लम मत हो। एंड उसके बाद में मैं डायरेक्ट s इक्वल टू
s plus it is saying that 1 by n cube, so I can simply write 1 divided by, आप चाहें तो because this time I am taking this I as a counter, so मैं I into I ले लूंगा और this is how हमारे पास इसका टोटल सम आ जाएगा। आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम दिस लूप मैं इस सम को यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा एंड दैट्स इट, ये मेरा प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसकी जगह पावर फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं लाइक I, 3, सो वो भी आप किया जा सकता है, बट आई थिंक पावर की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है क्यूब के लिए। कोई लार्जर वैल्यू हो तो हम पावर को यूज कर सकते हैं। सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, चलिए इसे भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम, लेट्स ट्राई टू रन दिस। नाउ इट इज सेइंग दैट एंटर द अपर लिमिट, से मैं n लेता हूँ 10, सो नाउ यू कैन सी दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, बट ये काफी सारे डेसिमल के बाद पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक राउंड फंक्शन ले लेता हूँ। सो यू कैन सिंपली टेक राउंड, जहां पर कि मैं बोलता हूँ कि इसे 2 डेसिमल पॉइंट्स के साथ राउंड अप कर दीजिए। नाउ यू ट्राई टू रन दिस अगेन, so this time if I take say 9, then see what happens, so it is showing you 1.2. This is how we can write program for this particular question. तो आप चाहें तो इसमें राउंड फंक्शन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ इट इज आस्किंग दैट राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर नंबर इनपुट बाय द यूजर। सपोज दैट मैं कोई एक नंबर इनपुट करता हूँ 124, तो इसके इंडिविजुअल डिजिट्स का मुझे टोटल सम फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द लॉजिक एक्चुअली कि मैं इस 124 को 10 से मॉड करूंगा सो दैट मुझे 4 मिल जाएगा। बाय द नेक्स्ट टाइम मैं 124 को 10 से डिवाइड करूंगा एंड देन उसका अगर मैं मॉड करूंगा तो ऑब्वियसली 12 का मॉड 10 करेंगे तो यू विल गेट दिस 2 एंड दिस इज हाउ हमें ये इंडिविजुअल डिजिट्स मिल जाएंगी एंड उसका हम सम करते चले जाएंगे। चलिए इसके लिए हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, इसमें हम लूप को भी इन्वॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिया n, जहां पे मैंने मैसेज कर दिया एंटर ए नंबर। आफ्टर राइटिंग दिस मैंने यहाँ पे यूज किया है व्हाइल लूप, सो दैट ये मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा इस n को डिवाइड करना 10 से और एज ए काउंटर ही इसको ट्रीट करना। सो मैंने यहाँ पे लिखा जब तक ये 1 से बड़ा है या इक्वल टू है तब तक मेरा ये लूप चलेगा। यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ d, जहाँ पे इस डिजिट्स को मैं फाइंड आउट करूंगा। इसके लिए मैं लिखता हूँ इसको आप n से मॉड कर दो, आई मीन 10 से मॉड कर। नाउ आफ्टर दिस मैंने सम लिया, जहां पर मैं इस सम के साथ या सम की प्रीवियस वैल्यू के साथ इस d को ऐड कर दूंगा। टू अवॉइड द एरर मैं इस s को यहाँ 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। आफ्टर दिस मैं इस n की जो नेक्स्ट वैल्यू मुझे चाहिए, जैसे मैंने 124 है, नेक्स्ट टाइम मैं जब 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 12 होगा, सो दैट मुझे इसका 2 मिलेगा। सो आई कैन अपडेट दिस n बाई 10। नाउ टू गेट द परफेक्ट इंटीजर मैं यहाँ पे इसे डबल स्लैश कर देता हूँ, अदरवाइज फ्लोट की प्रॉब्लम मत आए। सो ये मैंने कर दिया है। इसके बाद में अब क्या होगा कि मुझे फाइनली सम मिल जाएगा सारे डिजिट्स का इंडिविजुअल एंड आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम दिस लूप मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिजिट्स आर। सो मैं यहाँ पे s को प्रिंट कर देता हूँ। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सो दिस इज माई प्रोग्राम, लेट्स ट्राई टू रन दिस। सो नाउ इट इज आस्किंग एंटर ए नंबर, मैं डालता हूँ 4 5 6। सो नाउ यू कैन सी 6 plus 5 11 plus 4 15, so it is showing you the total sum of its all individual digits. So I hope आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम फ्लो ऑफ कंट्रोल पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई थिंक वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है, तो मुझे इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।